Good morning, everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Subras Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about the introduction of India, its extent and neighborhood. Today, we will read about some another topic. The first is political and administrative division India is a vast country. For administrative purpose, the country is divided into 28 states and 9 union territories. Telangana became the last state of India on 2 June 2014. It was previously part of Andhra Pradesh. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक विस्तृत देश है और एक प्रशासनिक लक्ष्य के लिए जो है भारत को जो है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। भारत का जो सबसे अंतिम यानी 28वां राज्य जो है वो तेलंगाना है, जो कि 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर जो है उसने अपना अस्तित्व बनाया। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया. The state have been referred mainly to the basis of the language. मतलब कि जो दिल्ली है वो हमारी जो है राष्ट्रीय राजधानी है और जो ज़्यादातर राज्य बनाए गए हैं उनको भाषाई आधार पर जो है बांटा गया है। ठीक है, राजस्थान इज द लॉन्गेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट state of India according to the area, and according to the population, the Uttar Pradesh is the most populous state of India, and the Sikkim is the least populated state of India. Then physical division. India has a variety of physical features like mountains, river, plains, plateau, desert and iceland. These features are broadly divided into 6 categories. First, the northern mountain. Second, the northern plain. Third, the peninsula plateau. Fourth, the Great Indian Desert.
Fifth, the coastal plain. And sixth, the Iceland. Okay. So the first is the northern mountain. Northern mountain is also divided into three categories. First, Greater Himalaya. और हिमाद्री. सेकंड, लेसर हिमालय. और हिमाचल. थर्ड, आउटर हिमालय. और शिवालिक. Okay, so the northern mountain areas divided into three parts. First, the Greater Himalaya or Himadri. The northern mountain range originates from Pamir Nat in Central Asia and border the northern part of India. The Himalaya extending between river Indus in the west and river Brahmaputra in the east are the highest mountain range in the world. They consist three parallel range aligned from north to south. The first in the north area, the first mountain range is Greater Himalaya or Himadri. The second one is which are located in the middle. It is known as the Lesser Himalaya or Himachal, and third outer Himalaya or Shivalik. Then first of all we will discuss about Greater Himalaya or Himadri. Okay. The Greater Himalaya or Himadri is the northernmost range of the Himalaya. It is the longest and the highest mountain range in the world with an average height of 6000 मीटर. मतलब जो सबसे उत्तर में स्थित जो है हिमालय की चोटी है, जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं बेटा, यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं और इसकी जो एवरेज हाइट है वो बेटा लगभग 6000 मीटर है. ठीक है ना. तो 3 ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू और गाडविन ऑस्टिन एंड माउंट कंचनजंगा लाइज इन दिस रेंज. मतलब कि विश्व की 3 प्रमुख चोटियां जो सबसे ऊंची है, पहली जिसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड बट इट इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया, इट इज लोकेटेड इन नेपाल. एंड द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज माउंट केटू और गाडविन ऑस्टिन, and the third one is Kanchenjunga. Okay. Then the mountain in the Himadri range are mostly snow capped
थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ऑफ देयर हाइट। मतलब जो हिमाद्री की जो ज़्यादातर चोटियाँ हैं वो साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं, क्योंकि उनकी इतनी अधिक ऊंचाई है कि जिसकी वजह से उन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। देन सेकेंड, लेसर हिमालय और हिमाचल। तो भारत में देखिए बेटा ऐसे 3 चोटियां पाई गई हैं। पहली ये जो है ग्रेटर हिमालय, और दूसरी ये है, इसको बोलते हैं जो है लेसर हिमालय और हिमाचल, और तीसरी जो है ये है, इसको बोला जाता है आउटर हिमालय और जो है शिवालिक श्रेणी। ओके, द लेसर हिमालय और हिमाचल। टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय लाइज द लेसर हिमालय एज द हिमाचल रेंज विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 4500 मीटर। मतलब कि बेटा ग्रेटर हिमालय के जो है दक्षिण में जो है क्या लेसर हिमालय पाया जाता है, जिसको हम हिमाचल के नाम से जानते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। ठीक है, दीज माउंटेन रेंज आर लोअर देन हिमाद्री। ए नंबर ऑफ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन आर लोकेटेड हियर लाइक दार्जिलिंग, कुल्लू मनाली, नैनीताल, शिमला एक्सेट्रा। मतलब बेटा ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत ढेर सारे हिल स्टेशन पाए जाते हैं, जैसे दार्जिलिंग जो कि असम में है, इसके अलावा जो है आपका कुल्लू मनाली, शिमला, नैनीताल, ये सभी जो है हिल स्टेशन जो है हिमाचल के अंतर्गत आते हैं। देन थर्ड वन इज आउटर हिमालय और शिवालिक। द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज द शिवालिक with an average height of less than 1250 मीटर। जो सबसे दक्षिण में हिमालय की जो सबसे अंतिम शाखा है उसको हम जो है आउटर हिमालय या शिवालिक के नाम से जानते हैं, जिसकी एवरेज हाइट बेटा लगभग 1250 मीटर है। ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। इसका विस्तार जो है जम्मू और कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। इट इज आल्सो नोन एज द आउटर हिमालय। इसको जैसे कि आप सभी जानते हैं शिवालिक को जो है आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दे आर आल्सो रिफर्ड टू एज फुट हिल ऑफ द शिवालिक हैव ब्यूटीफुल वैलीज और दूर सच एज देहरादून इन उत्तराखंड। मतलब कि शिवालिक की जो तलहटी में स्थित कुछ जो है क्षेत्र हैं जिनको हम दून के नाम से जानते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में स्थित देहरादून है। देन सेकेंड वन इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। मतलब कि जो बेटा उत्तरी मैदान है इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर में, मतलब पश्चिम में जम्मू और कश्मीर से लेकर पूर्व में जो है असम तक है। ओके, इट इज कवरिंग ए लेंथ ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। यह लगभग 2400 किलोमीटर क्षेत्र पे अपना विस्तार दर्शाता है या उतने क्षेत्र पर फैला हुआ है। दे लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय आर आल्सो पॉपुलरली नोन एज द इंडो गंगेटिक प्लेन। मतलब ये जो क्षेत्र है बेटा ये यहाँ पर विस्तृत है। ठीक है, तो बेटा यहाँ मतलब ये यहाँ इन जगह से लेके इन क्षेत्रों पे विस्तृत है। तो ये जो है बेटा जो उत्तर का मैदान है ये जो है हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है, और दक्षिण में ये जो प्लेन पाया जाता है यह एक बहुत ही मतलब बड़ा अच्छा स्थान है और बहुत ही पॉपुलरली मतलब इसको जो है मुख्यतः जो है
गंगा और सिंधु के मैदान के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदियों का जो है सिंधु नदियाँ फैली हुई हैं और इस प्लेन में गंगा जो है बहती है। तो इनके जो संपूर्ण रूप है इनको मिलाकर बेटा इंडो गंगेटिक प्लेन का जो है निर्माण होता है। तो जो है इस तरह से इसको जो है मुख्यतः जाना जाता है इंडो गंगेटिक प्लेन के नाम से। ठीक है। देन दे आर वास्ट रिच ऑफलैंड मेड बाय फर्टाइल द अलुवियल डिपॉजिट ब्रॉट बाय रिवर गंगा एंड इंडस। मतलब ये जो पूरा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र बना हुआ है ये गंगा और सिंधु के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। जलोढ़ मिट्टी जो कि बेटा आप जानते हैं कि नदियाँ अपने साथ बहा के लाती हैं और नदियों के किनारे जमा करती हैं। तो ये बेटा एक बहुत फर्टाइल मिट्टी होती है। ठीक है ना। इससे जो है मतलब एक उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है जिसपे जो है आसानी से खेती की जा सकती है। द गंगा प्लेन कवर्स ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड एक्सटेंड टू मेनी स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। दीज प्लेन्स आर मेड fertile by flowing Ganga river and its tributaries like Yamuna, गोमती, कोसी, गंडक एंड घाघरा। मतलब कि जो ये गंगा का जो मैदान है ये बहुत विस्तृत क्षेत्र पर फैला हुआ है और यह जो है उत्तरी भारत में लगभग कई राज्यों में फैला हुआ है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। और यहाँ का ये जो प्लेन है यहाँ पर जो है गंगा के द्वारा बहाकर लाई गई वे मिट्टियाँ हैं जो कि जो है इन सभी स्थानों को जो है उपजाऊ बनाती हैं। और इसमें गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया प्लेन ही जो है इस स्थान का निर्माण करता है। गंगा की सहायक नदियों में जैसे कि यमुना, गोमती, कोसी, गंडक और घाघरा इत्यादि हैं। ये जो है यहाँ पर बहुत सुंदर जो है मैदान उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। दीज ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री इन द हिमालय एंड टर्मिनेट इन द वे ऑफ बंगाल। ये जो गंगा नदी है इसका जो ओरिजिन है बेटा ये कहाँ पे है? ये जो है गंगोत्री में है। और ये बेटा टर्मिनेट कहाँ होती है? ये टर्मिनेट होती है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। ओके। ठीक। तो ये बेटा जो है जो गंगा नदी है ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर घिरती है। ठीक है ना। तो इस तरह से वहाँ से गंगोत्री से निकलकर ये जो है मैदानी इलाकों का निर्माण करती हुई लगातार जो है क्या कहते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। द गंगा प्लेन हैज alluvial soil and plenty of water which help in agriculture। जो गंगा का मैदान है यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पानी पाए जाने के कारण अच्छी जो है खेती होती है। मेनी क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, शुगर कैन एंड मेज आर ग्रो इन द गंगा प्लेन। बहुत तरह की फसलें जैसे कि गेहूँ, गन्ना, चावल और मक्का इत्यादि जो है यहाँ के मैदान में उगाए जाते हैं। देन थर्ड द पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला आप जानते ही हैं कि पेनिनसुला वह भूखंड जो तीन तरफ जो है बेटा वाटर बॉडीज से घिरा रहता है और ट्रायंगुलर इन शेप होता है मोस्टली, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। द पेनिनसुला प्लेटू टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स lies a triangular plateau region called the peninsula plateau। मतलब कि जैसे कि जो है ये जो उत्तर का मैदान है इसके जो है दक्षिण में जो है एक
प्रमुख जो है ट्रायंगुलर प्लेट्यू है जिसको हम लोग पेनिनसुला प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। इट इज़ द ओल्डर लैंड मास ऑफ इंडिया। यह भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। मेजर पोर्शन ऑफ इट लाइज इन द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। इसका जो बेटा मुख्य भाग है वो जो है मुख्यतः मध्य भारत और दक्षिण भारत में पाया जाता है। द प्लेट्यूज सराउंडेड बाय हिल्स रेंज ऑन ऑल साइड। जो यहाँ पे प्लेट्यू या पठार पाए गए हैं ये चारों तरफ जो है बेटा घिरे हुए हैं पहाड़ियों से। टू द नॉर्थ ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू लाइज द अरावली, विंध्याज एंड सतपुराज एंड राजमहल हिल्स। जैसे कि जो यहाँ पे प्लेट्यू पाया गया उसके उत्तर में पाई जाने वाली प्रमुख पहाड़ियाँ हैं अरावली, सतपुड़ा, विंध्या और जो है राजमहल की पहाड़ियाँ। मतलब कि यहाँ पे जो प्लेट्यू पाया जाता है उसके उत्तर में ये चारों जो है पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। टू द वेस्ट द वेस्टर्न घाट एंड टू द ईस्ट आर द ईस्टर्न घाट लोकेटेड। मतलब इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। ठीक है। द सरफेस ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू इज अनइवन एंड इट फॉर्म बाई इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो बेटा पठार की जो भी जमीन होती है या जो वहाँ की जो सतह या धरातल होती है वो अनइवन मतलब कि बेटा जो है समतल नहीं होती। वो जो है कैसी होती है, वो जो है खुरदुरी और रफ होती है। क्यों? क्योंकि उसका निर्माण जो है इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स से होती है। एंड द प्लेट्यू आर रिच इन मिनरल। जो प्लेट्यू होते हैं बेटा वो बहुत रिच होते हैं इन मिनरल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, द नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स and the peninsula plateaus. We will meet in next lecture in next day. Thank you.